جماعت دہم، مضمون اردو، اردو قواعد و انشاء، صفحہ نمبر 6، 7، 8، 9 اور 14۔ معلم ضیاء الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اردو کی قواعد و انشاء کے حوالے سے ہے، جس میں ہمارا جو موضوع یا عنوان ہے وہ اسم مفعول کی قسمیں ہیں۔ تو پیارے بچوں، اسم مفعول کو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مفعول کہتے کسے ہیں۔ مفعول ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کوئی کام واقع ہوا ہو تو ہم اسے اسم مفعول کہتے ہیں۔ اور اسم مفعول کی دو قسمیں ہیں، اسم مفعول قیاسی اور مفعول سماعی۔ قیاسی وہ مفعول ہے جو باقاعدہ قاعدے کے مطابق، قانون کے مطابق جو ہے مفعول بنایا جائے، جبکہ اس میں مفعول سماعی وہ مفعول ہے جو جیسے سنا اور اس کو ویسے ہی آگے اس کو جو ہے اس کو ویسے اس کو بیان کر دیا۔ تو اس میں مفعول قیاسی وہ اس میں مشتق ہے جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے، یعنی کہ قاعدے کے مطابق بنایا جائے گا تو مصدر سے بنایا جائے گا۔ اور اس میں مفعول قیاسی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس مصدر سے اس میں مفعول بنانا ہو اس کی ماضی مطلق کے آخر میں ہوا لگا دینے سے اس میں مفعول بن جاتا ہے۔ جیسے کہ مصدر کیا ہے؟ لکھنا۔ لکھنا کے آخر میں جو ہے اپنا نون الف نہ ہٹا دے، نون ہٹا دے اور لکھا بن جائے گا، اور آخر میں ہوا لگا دے تو کیا بن جائے گا؟ مفعول قیاسی بنے گا۔ جیسا کہ لکھنا سے لکھا ہوا، لکھی ہوئی، پڑھنا سے پڑھا ہوا، پڑھی ہوئی۔ اسی طرح مفعول سماعی ہے وہ اسم جو کسی قاعدے سے نہیں بنایا جاتا لیکن معنی اس میں مفعول کے دیتا ہے۔ مثلا نکٹا، کنچدا، ٹھیک ہے، بیاہتا اور دکھی، یعنی کہ یہ وہ اسم مفعول سماعی ہے جس کے اندر وہ یہ مصدر سے تو نہیں بنتے لیکن چونکہ نک کٹا، ناک کٹا ہوا، معنی تو وہ وہی دے رہے اس میں مفعول قیاسی والے، تو لہٰذا نک کٹا، کنچدا، بیاہتا، دکھی، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے کیا کہلائیں گے؟ اس میں مفعول سماعی۔ فارسی کے اس میں مفعول اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ اندوختہ، اموختہ، ازمودہ، شنیدہ، جبکہ عربی میں جو اس میں مفعول استعمال ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ مثلا مفعول کے وزن پر مظلوم، مخلوق، معبود، معلوم، مقتول، جبکہ مقال کے وزن پر کیا ہے؟ اس کا جو ہے مفتعل کے وزن پر مقتدر، منتشر، منتظر، منتخب۔ تو یہ بچوں آپ نے یہ سمجھ لیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس میں مفعول اور مفعول میں فرق۔ تو اس میں مفعول وہ ہے جو مفعول کو ظاہر کرے، اور مفعول اسے کہتے ہیں جس پر کوئی فعل واقع ہوا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں مفعول مصدر وغیرہ سے بنایا جاتا ہے لیکن مفعول بنایا نہیں جاتا، یعنی کہ اس میں مفعول ہمیشہ مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ مصدر جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا، مثال کے طور پر کیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لکھنا، لکھنا مصدر ہے، اس سے کیا بنا؟ لکھا ہوا، تو لکھا ہوا اس میں مفعول ہے، ٹھیک ہے، مثال کے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے، تیسری دیکھیں گے، اس میں مفعول کو مفعول کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن مفعول کبھی اس میں مفعول کی جگہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں نے لکھا ہوا پڑھا، بچہ پڑھا ہوا بھول گیا، ان جملوں میں لکھا ہوا، پڑھا ہوا دونوں اس میں مفعول ہیں جو مفعول کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ اسم حالیہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے، جیسے نعیم ہنستا ہوا آیا، وسیم نے کامران کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پہلے جملے میں ہنستا ہوا فاعل نعیم کی حالت بیان کر رہا ہے، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، حالیہ حالت کنڈیشن کو بیان کرنا۔ دوسرے جملے میں پڑھتے ہوئے کامران جو کہ مفعول ہے کی حالت بیان کر رہا ہے، لہذا ہنستا ہوا، پڑھتے ہوئے دونوں اس میں حالیہ ہیں۔ اس طرح آپ اور بھی کو بہت سی حالتیں، کھاتے ہوئے، روتے ہوئے، پیتے ہوئے، جاگتے ہوئے، یہ بھی اس میں حالیہ کی مثالیں ہیں۔ تو اس میں حالیہ بنانے کا طریقہ مصدر کے آخر سے نہ ہٹا کر، مصدر کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ لفظ یا ہر وہ فعل جس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ لکھنا ہے، لکھنا تو اس کے آخر میں نون الف نہ ہے، دوڑنا آخر میں نون الف نہ ہے، ہر وہ لفظ جس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہوگا وہ مصدر کہلاتا ہے۔ تو اس میں حالیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مصدر کے آخر سے نہ ہٹا کر تا ہوا لگا دینے سے اس میں حالیہ بن جاتا ہے، جیسے کہ لکھنا سے لکھتا ہوا، لکھتی ہوئی، پڑھنا سے پڑھتا ہوا، پڑھتی ہوئی، اس میں حالیہ ہے۔ آگے چلتے ہیں اس میں حاصل مصدر کی جانب۔ تو اس میں حاصل مصدر وہ اس میں مشتق ہے جو مصدر تو نہ ہو لیکن معنی اور اثر مصدر کا ظاہر کرے۔ مثلا یعنی کہ آہٹ
आहट जो है ये मजदर तो नहीं है, लेकिन मानी इसके मजदर वाले हैं, यानी कि आहट से मतलब क्या है, आना। लड़ाई, लड़ाई का मतलब क्या है, लड़ना, ठीक है। दबाव, चुनाचे, आहट, लड़ाई और दबाव हासिले मजदर है, क्योंकि इनको मजदर से हासिल किया गया इसलिए ये हासिले मजदर कहलाते हैं। हासिले मजदर बनाने के तरीके क्या है? नंबर एक, बाज मजदरों के आखिर से अलिफ हटाकर जो बाकी रहे वो हासिले मजदर बन जाता है। जैसे कि जलना है, इसके आखिर से अलिफ हटा देंगे तो जलना से जलन है, चलना से चलन है, दुखना से दुखन है, लगना से लगन है, चुभना से चुभन। बाज मजदरों के आखिर से ना हटाकर वाव लगा देने से हासिले मजदर बन जाता है। जैसे कि दबाना, दबाना से ना अगर हटा दें तो आगे वाव ऐड करेंगे तो दबाव बन जाएगा। झुकाना से झुकाओ, बहाना से बहाओ, लगाना से लगाओ। नंबर 4, बाज मजदरों के आखिर से ना हटाकर वट लगा देने से हासिले मजदर बन जाता है। जैसे कि मिलाना से मिलावट, गराना से गरावट, बनाना से बनावट, सजाना से सजावट। इसी तरह बाज मसादर के आखिर से ना हटाकर हट लगा देने से हासिले मजदर बनता है। घबराना से घबराहट, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, आना से आहट। बाज मजदरों के आखिर से ना हटाकर अलिफ हमजा छोटी ई लगा देने से हासिले मजदर बन जाता है। जैसे कि लड़ना से लड़ाई, रंगना से रंगाई, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई, पिटना से पटाई। लड़कपन, बचपन, अपनाइयत, चाहत, चाल, ये सब हासिले मजदर हैं। फारसी के हासिले मजदर उर्दू में भी हासिले मजदर ही शुमार होंगे, जैसे गुफ्तगू, जुस्तजू, आमदोरफ्त, आजमाइश, पैमाइश वगैरह। अरबी के हासिले मजदर उर्दू में भी हासिले मजदर के तौर पर ही इस्तेमाल होंगे, जैसे शराफत, जहालत, हमाकत, इल्म, अमल वगैरह। इसमें मुआवजा वो इस पे मुश्तक है जो किसी काम या किसी खिदमत की उजरत या बदले के मानी में बोला जाए। मसलन पिसवाई, धुलवाई, ये सारे के सारे जो है इसमें मुआवजा कहलाते हैं। इसमें मुआवजा बनाने का तरीका, मजदर के आखिर से ना हटाकर अलिफ हमजा छोटी ई लगा देने से इसमें मुआवजा बन जाता है। जैसे रंगवाना से रंगवाई, लगवाना से लगवाई, दौलाना से दौलाई, उठवाना से उठवाई, पिसवाना से पिसवाई वगैरह। आगे बढ़ते हैं इसमें सिफ्त की जानिब। इसमें सिफ्त वो इसम है जिससे किसी की अच्छी या बुरी हालत जाहिर की जाए। मसलन लेक, लड़का, ऊंची दीवार, इनमें नेक और ऊंची इसमें सिफ्त है जिसकी अच्छी या बुरी हालत जाहिर की जाए। इसे इसमें मौसूफ कहते हैं। जैसे ऊपर की मिसालों में लड़का और दीवार इसमें मौसूफ है, यानी कि एक सिफ्त है और एक इसमें एक मौसूफ है। जिसकी सिफ्त बयान की जाएगी वो मौसूफ होगा। इसमें सिफ्त की किस्में, इसमें सिफ्त की दो किस्में हैं, सिफ्त असली और सिफ्त निस्बती। सिफ्त असली वो इसमें है जो जबान में शुरू से किसी की अच्छाई या बुराई बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे अच्छा, बुरा, नेक, बद, तेज, सुस्त। और सिफ्त असली के दर्जे कितने हैं? 3 दर्जे हैं, सिफ्त नफ्सी, सिफ्त बाज, सिफ्त कुल। जैसे कि आप इंग्लिश में भी आपने वो फॉर्म पढ़ते हैं, उसकी फॉर्म गुड, बेटर, बेस्ट। मिसाल के तौर पर गुड क्या होता है? अच्छा, बेटर उससे अच्छा, और बेस्ट सबसे अच्छा। ये भी वो जो पहली जो फॉर्म होती है जिसे हम आमतौर पर सिफ्त नफ्सी कहते हैं। सिफ्त नफ्सी से मुराद वो है जिसमें किसी की सिफ्त का दूसरे के साथ जो है मुआवजा नहीं किया जाता, कंपैरिजन नहीं किया जाता, जैसे कि अच्छा, बुरा, ऊंचा, नीचा वगैरह। बाज में क्या है? इसमें किसी एक के साथ मुवाजना किया जाता है, मसलन उससे ऊंचा, नेक तर। जबकि सिफ्त कुल वो सिफ्त है जिसका वो इसमें सिफ्त है जिससे एक को दूसरे से सबसे बढ़ाया जाए, जैसे सबसे ऊंचा, बुलंद तरीन, नेक तरीन। ठीक है, जैसे कि सिफ्त, मैं इसको आसान अल्फाज में अगर बयान करूं, सिफ्त नफ्सी है बद, और सिफ्त बाज है बदतर, और सिफ्त कुल है बदतरीन। तो इसी तरह हम देखते हैं सिफ्त निस्बती किसे कहते हैं। सिफ्त निस्बती वो इसमें सिफ्त है जो सिफ्त तो ना हो लेकिन महज ताल्लुक की वजह से सिफ्त के माने जाहिर करे, जैसे लाहौरी नमक, यानी कि किसी चीज के साथ ताल्लुक जुड़ जाए तो ऐसे सिफ्त को हम सिफ्त निस्बती कहते हैं। लाहौरी नमक, अरबी आदमी, इन दोनों में लाहौरी का लफ्ज लाहौर से और अरबी का लफ्ज अरब से ताल्लुक जाहिर करने की वजह से सिफ्त निस्बती कहलाते हैं। तो सिफ्त निस्बती बनाने के तरीके क्या है? सिफ्त निस्बती बनाने के तरीके अगर हम पढ़े तो वो ये है, बाद इसमों के आखिर में छोटी लगा देने से सिफ्त निस्बती बन जाती है, जैसे लाहौर से लाहौरी है, मुल्तान से मुल्तानी, कसूर से कसूरी। इसी तरह बाज अगर किसी इसके आखिर में अलिफ है और छोटी हो और अलिफ है और छोटी को वाव से तब्दील करके याए निस्बती लगाई जाए, जैसा कि भेरा से भेरवी, डस्का से डस्कवी, गोलड़ा से गोलड़वी, सिफ्त निस्बती बनाई जाएगी। बाद इसमें के आखिर में अलिफ नून है ना लगा देने से सिफ्त निस्बती बन जाती है, जैसे कि शागिर्द से शागिर्दाना, उस्ताद से उस्तादाना, आलिम से आलमाना। बाद इसमों के आखिर में अलिफ नून छोटी नी लगा देने से सिफ्त निस्बती
बन जाती है, जैसे कि नूर से नूरानी, रूह से रूहानी। इसी तरह बाज इसमों के आखिर में ये नून लगा देने से सिफ्त निस्बती बन जाती है, जैसे कि रंग से रंगीन, संग से संगीन, नमक से नमकीन। और इसी तरह आगे देखें कि मक्का और मदीना की सिफ्त निस्बती खिलाफ क़यास मक्का से मक्की और मदीना से मदनी इस्तेमाल की जाती है। मदरजा झैल अल्फाज सिफ्त निस्बती हैं, मुटियाला, जियाला, शर्मीला, रंगीला, जहरीला वगैरह। सिफ्त मुशब्बा, ऐसा इसमें सिफ्त जो मौसूफ की ज़ात और हकीकत से ताल्लुक़ रखे, जैसे शरीफ, बखील, रजील, सुर्ख, स्याह। ये सिफ्त मौसूफ की ज़ात में मुस्तकिल रहती है, इसे सिफ्त ज़ाती भी कहते हैं। फेल, फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना किसी ज़माने में मालूम हो, जैसे नईम आया, ताहिर ने किताब पढ़ी। फेल का ताल्लुक ज़माने के साथ होता है और ज़माने तीन है। नंबर एक, ज़माना माजी, यानी कि गुजरा हुआ ज़माना, जो गुजर चुका है उसे ज़माना माजी कहते हैं। इसी तरह ज़माना हाल, वो ज़माना जो मौजूदा है इसे हाल कहते हैं। ज़माना मुस्तकबिल, आइंदा ज़माना को ज़माना मुस्तकबिल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जितना भी हमने कवायद का काम किया है, यानी कि हमने फेल की इकसाम पढ़ी है, मफूल को हमने पढ़ा है और इस सिफ्त मुशब्बा को हमने पढ़ा है, तो ये सारा का सारा काम आपने घर में इसको याद करना है और इसको साथ साथ लिखकर इसको प्रैक्टिस करना है। ज़्यादातर आपका इसमें फोकस होना चाहिए आपका एग्जाम्पल्स के ऊपर। मिसाल के तौर पर पिसवाई क्या है, धुलवाई क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा कि पिसवाई इसमें मुआवजा है, ठीक है, इसमें सिफ्त यानी कि काला लड़का इसमें सिफ्त है। तो प्यारे बच्चों, जितना हमने पढ़ा इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना और अपनी नोटबुक्स में इसको आपने नोट भी करना है।